Yeah, done. You ready? Done? Done? Yeah, Thank you. That's all. One more look here. Sir, please. Thank you, sir. Thank you. Now you solo. वहाँ पे फ्लैट्स के सामने One more look here. Sir, look here. Look here. No, no, wait, wait. Come, you will post. Thank you. No. Guys, this side, please. One more look. हाथ से आगे। एक मिनट सर Hi. Look here. Very nice. Look here. Sir, एक सेकंड, एक सेकंड.
सर यहाँ पे अरे एक बार अकेले में करो ना। ऐसे नहीं होता। हाँ मैं मिडल में आती हूँ, पतली निकलूंगी। मतलब नहीं तो फिर सब हाँ प्लीज मुझे छुपाओ दोनों उधर। सर थैंक यू सो मच। Thank you ma'am, thank you sir, thank you so much. मैंने उल्लू का चरण शुरू कर दिया, प्रोड्यूस बाय वाइबल की प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया से गालियाँ आ गई, मैया में तो लाते नाम देना मतलब दिखा है। तीसरे Very nice. Fantastic. Very good, very good. Thank you. हो गया तुम्हारा ना साइड हो जाओ थैंक यू बोलो एंगल दे दो। थैंक यू Please click on my phone. मनीष Yeah. खींचो यहाँ पे लोग जा सेंटर में यहाँ पे लोग थोड़ा सा है पीछे। डन। जोर से और जोर से हंसो। चौहान को देख के ऐसे ही हंसी आ गई मेरे पास। Look here. अरे कम विकी कम दिस साइड। मैं सबसे लंबी हूँ। मैं आ गया ना, मैं और विकी सबसे लंबे। डन। थैंक यू। Sir, look here. All of you look straight. Smile नहीं दिख रही मेरी क्या मैम लोग? यहाँ पे थैंक यू। प्लीज यहाँ Look पे here. Look here. यहाँ पे लोग नजर देखते हैं। सर इतना जल्दी आप जहाँ बोलेंगे वहाँ खिंचवा देंगे। हो गया एक मिनट प्लस को बढ़ा के अपने के लिए थैंक यू। आप सामने से लाइट ब्रो वेलकम यू लाइट दे लाइट। किरण जी। एक ही बार में कर लो सर आप भी स्टेज पे आ जाए। मिस्टर सुशील जी, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टुडे। आई होप यू आर एंजॉयिंग। सुशील जी प्रेजेंट है। किसी भी वेब सीरीज का सबसे
इम्पोर्टेंट फेस जो होता है वो उसकी स्टार कास्ट होती है. So with great hooting, I would like to welcome Miss Pallavi. Ma'am, you are looking really lovely today. Beautiful hair. Mr. Trijan Singh. Mr. Prashant Singh. And most awaited name, Ivanka Das ma'am. बिल्कुल excitement नहीं है, huge round of applause. Last but not the least, किसी भी successful web series के पीछे producers होते हैं. So I would like to welcome all the producers, Mr. Akshay Mishra. अक्षय सर सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं बल्कि बहुत ही खूब एक्टर भी हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही कम है. मिस्टर आशु. So sorry. Miss Shri Das. And Mrs. Mohini. Mohini couldn't come. She's down with bad viral, so I will be filling up for her. Thank you. Miss Ashita. And when I met her, the first thing I came here, I met her and I am not able to figure it out. Okay, so before we start asking questions, we'll just give them a huge round of applause. Then I'll be asking. इवांका मैम, आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है. What made you choose this role? Cool. Like, what was the motivation behind it? Yeah. तो ज़रूर मैं पहली बात ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए कोई भी किरदार मेरे लिए सब समान इक्वल है. But the thing which I generally suffer and going through in real life, which is quite, you can मैं काफ़ी तरीके से मैं ये चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ. In which मैं रियल लाइफ में तो बॉस नहीं, तो because I've seen lot of things in my life and I did achieve that. All those लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मुश्किल जो चीज़ें हैं मैंने उसको पार करके हासिल की है. तो सिर्फ फ़र्क ये है, बहुत लोगों ने देखा नहीं है, तो शायद मैं हर लोगों के पास जाके बोल नहीं सकती. नॉक नॉक मुझे जानिए. सो आई हैव गॉट वेरी लवली कैरेक्टर जहाँ पे मैं असलियत दिखा सकती हूँ. मोटा है. Very true, ma'am. आपको हम लोगों के लिए बिल्कुल you are somebody who motivates. So that is great. So I hope we'll be loving your character in the web series and looking forward to watch it. So same question I would like to ask from Miss Pallavi. Repeat the question. Okay, so the question was, what motivated you to go and choose this character, and what do you think? Why are you in this role? What motivated The first reason is मैंने सुना भी नहीं था, and when आशु जी called, there is no way to say no. मतलब उनके डिक्शनरी में ना नहीं है. It's like all about yes, yes, yes. और मैं मतलब ये हाँ करने के बाद मैंने आपकी स्टोरी सुनी है. So and it was really good. बहुत अलग है. मतलब एक सिंपल सा जो लड़की नहीं, मैं स्टोरी नहीं बता सकती ना. No. पूरा बताओगे तो देखोगे. हाँ वही. So it's like एक सिंपल That's सी you need to keep the secret. नहीं मैं मतलब बता रही हूँ जनरली. हाँ, तो एक बहुत सिंपल लड़की होती है जो कि मैं हूँ, इनोसेंट सा चेहरा उसका. तो वो एक ऐसे सैलून में जाती है, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रांसजेंडर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, तो वो देख के उसको मतलब रियली अ शॉकिंग सिचुएशन. लाइक ऐसा उसने कभी नहीं देखा था. बस मैं लड़की से प्यार करती है ऐसा वाला, मतलब नेवर. बट वो खुद भी कंफ्यूज रहती है कहीं ना कहीं कि मतलब वो जिंदगी में क्या चाहती है, खुशी या मस्ती. तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा #मंडी. वो जोरदार तालियां. सर सेम क्वेश्चन आपसे भी रिपीट. मैं यही कहूँगा कि
कैरेक्टर के बारे में सुना था और आशु से मेरी जब पहली मीटिंग हुई थी तो आई थिंक एक अब नाम मिस कर रहे हैं, वो है हमारे डायरेक्टर साहब का अभय, जिनसे मैं पहली बार मिला था और जब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे नरेट की थी प्यार तो मुझे हुआ है। तो जब मैं उनसे मिला था, जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे नरेट की थी तो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि आई विल लव टू प्ले दिस पार्ट एंड क्रेडिट गोज़ टू हिम, आशु एंड अक्षय, थैंक यू सो मच एंड इट्स एन ऑनर। सर के लिए भी एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। सर सो एक एडिशनल क्वेश्चन है, सो ये रोल प्ले करते समय आपको कुछ चैलेंज लगा अदर देन आपने जो भी रोल्स पहले किए होंगे उससे? चैलेंजिंग तो नहीं था क्योंकि मैंने जो पहले भी जो काम किया इट वाज क्वाइट सिमिलर टू दैट पार्ट, बट यस एज शी मेंशन कि इट्स अ लव स्टोरी, जिस तरह वो एंड होती है देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड बहुत से ट्विस्ट हैं, सो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, बट यस इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। या थैंक यू सो मच सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भोसले सर के लिए है। तो सर मैं पूछना चाहूंगी, अभी तक आपने इतने सारे एजी शोज किए हैं, तो फिर ये है हैशटैग मंडी क्यों? मेरे पास आशु जी जब ये प्रोजेक्ट लेके आई तो मैंने आशु जी को एक क्वेश्चन किया था कि आशु जी आपने ये कौन सी चॉइस करके ये किया है? तो आशु जी बोली मुझे कुछ दुनिया में कुछ अलग सा होता है वो दिखाना है, और आशु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको हैशटैग मंडी में दिखाने की अच्छी से कोशिश की है। तो आशु जी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, मेरे पास में बैठे हुए ऐसे लग रहा है करके भाई बहन। पास में बिठाने के बाद तो ऐसे लग रहा करके दोनों भाई बहन पक्का ही है। ये लेकिन ठीक है, भाई बहन का रिश्ता ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू आशु जी। थैंक यू सर सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एक अमेजिंग और नई स्टोरी के रूप में हैशटैग मंडी व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे और उसके साथ साथ एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन के रूप में भी सामने आए, नॉट जस्ट द एक्टिंग बट एज अ मोटिवेशनल इंस्पिरेशन, जैसे ये हमारे व्यूअर्स को और समाज में एक प्रभावित वे में उतरे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आशु मैम के लिए है। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मूवी मंडी से ये प्रभावित है या कैसे है, मतलब कुछ रिलेशन है? देखिए मंडी इज अ कल्ट इन इटसेल्फ। श्याम जी को साथ तुलना करना नॉट पॉसिबल, दैट आई वुड बी एक्सट्रीमली रॉन्ग इन दिस रिस्पेक्ट। What I will say that मंडी में भी काफ़ी सारी भावनाएं दिखाई गई थी और इमोशंस, एंड हैशटैग मंडी सिंस इट्स कमिंग ऑन OTT हम उसे थोड़ा एजी में बता रहे हैं, लेकिन हम इस पे वी आर फाइटिंग फॉर द इमोशंस ऑफ पीपल। वी ऑल आर इक्वल्स। स्टॉप ट्रीटिंग देम सेपरेटली कि ओ दिस इज हिज सेक्सुअल प्रेफरेंस, दिस इज हर सेक्सुअल प्रेफरेंस। हमें वो नहीं करना है। What is their choice in life is their choice, but we are normal and we all have emotions and we all go through happiness and sadness in life. That's what we have come through in hashtag. In fact, I think we should say we are not normal. I think body सबके पास है, चार दरवाजे के पीछे में करने से अच्छा जो चीज़ हम सहते हैं वो देखते हैं वो दिखाओ भी। कब तक 21st सेंचुरी है और ये इंडिया है, बिछड़े हुए देश से बाहर निकलना चाहिए, which I do feel like. मैम आपसे, आपके हाथ में माइक है तो आपसे एक और क्वेश्चन, जी। व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे हजम करो। अच्छा कोई दे ही नहीं सकता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी जी से। जी, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग, व्हाट डिड यू लाइक इन द शो? इसी ने ही जवाब दे दिया। एक्चुअली एवरीथिंग, बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर थे वो इतने कंफर्टेबल थे और हमको लगा ही नहीं है, मतलब वी डू हैव अ लव मेकिंग सीन राइट, सो हम इतना कंफर्टेबल वे में शूट किए, मतलब वो हमें आके पूछे कि तुम कितने में कंफर्टेबल हो,
एंड मतलब इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, I think And the that is the team most was amazing super, thing. हाँ exactly, पर बहुत अच्छे थे, मतलब जिस तरह से शूट किया, मतलब the unit, even the understanding between the actors and the production, everything was super. Thank you so much. So मेरा दूसरा क्वेश्चन है मिस श्री दास के लिए। इधर है, उनके हेयर कलर मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको इस शो में सबसे, जैसे मुझे आपका हेयर कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इस शो में सबसे अट्रैक्टिव क्या लगा? जो मेरे साइड में अभी बैठी है, she is an absolute camera stealer. So लड़कों से पूछो ना। तो ऑब्वियसली नहीं, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली सबका परफॉर्मेंस अपने आप में ही उन्होंने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है, और स्टोरी ही इतनी चैलेंजिंग है, जैसे बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग वही पूछ रहे हो कि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है उस स्टोरी को एक्सेप्ट करना और वैसे दिखाना, फियरलेसली कैमरे के सामने वो चीज़ को लाना। तो a huge round of applause for all the on-screen performers we have over here. इवांका मैम, ये आपकी पहली वेब सीरीज है जी। तो आपको क्या सोचा आपने कि आप वेब सीरीज क्यों करना चाहती हैं, एंड आपका ये डेब्यू हो रहा है तो क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज आई थिंक वेब सीरीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देयर वुड बी फ्यू चैलेंजेस जो आपके अक्रॉस आए होंगे, बिकॉज यू आर मे बी लाइक यू आर अ वेरी गुड डांसर, यू आर अ मॉडल, बट वेब सीरीज में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस फेस हुए होंगे। कहाँ से शुरुआत करूँ वो पता नहीं चल रहा, मगर हाँ ज़रूर कहूँगी। पहली बात तो मैं जब पैदा हुई थी अपने आप को सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ वेयर आई कैन यू नो बी लाइक द वे आई एम, और वो सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस उतरूँ। वो सिलसिला कुछ अजीब था कि मैं डांसर बन गई, मॉडल बन गई, मगर अच्छा था जो सिलसिला था, एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात ये है कि मुझे ये मौका कैसे मिला। It just all credit goes to, I think, but I would say like Akshay got of this because we used to do like some theatre के लिए हम सिलसिले में कहीं मिले थे and we became friends now. तो मेरे पास बहुत ये लेके 3 प्रोजेक्ट है, तो इस इत्तेफाक it was so coincidence and he offered me ये वाला पहला रिलीज हो रहा है and I'm very happy and he said why we suggest any other for this particular cameo or role character. तो I have one of my friend trans, she is now, तो अभी क्यों नहीं बात, तो उसी सिलसिले में भी must be people, lot of people knows about because it streams on all portals, so it's इस सिलसिले में। और बात रही क्यों किया है मैंने, और दूसरा में नेशनल अवार्ड लेना है सिर्फ इसलिए। हम बिल्कुल प्रे करेंगे कि आपको नेशनल अवार्ड मिले एंड उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लूँगी, वो कर लूँगी। एंड हम बिल्कुल आपको अब तो हॉलीवुड में देखना चाहेंगे। वो तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, I will. डेफिनेटली विल प्रे अबाउट इट। एंड आपका ऑलरेडी जो प्रोमो है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का प्रोमो है, सो But इसके I would like to say something. Please give me that permission. So सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, कोई लोग मुझे जानते हैं और कोई नहीं, मुझे उसका मतलब I really don't feel bad about of it. I should not feel bad about of it. इवांका दास मतलब भगवान दयालु है, God is gracious। नाम बेशक मैंने रखा, मगर इस नाम को बनाने वाला एक ही शख्स, वो है मिस्टर केशव सूरी, फाउंडर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस ललित सूरी। प्लीज एक बार उनके लिए ताली बजा। आज उन्होंने सॉरी मैम, सॉरी आई वुड लाइक टू से एनी व्हिच वेज, आज आपके तक पहुंचने का रीजन आई जस्ट इट्स अ फॉर्मल, मैं बंगाली में बोल रही हूँ, माँ शिकीत छिलो सामने वाले को थोड़ा सा मीठा बोल दो, तो बिकॉज वेल आई एम नॉट नोन एज अ मीठा वाली, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो द थिंग इज उनके वजह से जो मैं हूँ आज वही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सबके सामने बोलने के लिए, 2 वक्त की रोटी हो और छत हो, बिकॉज ही इज ओनली वन एंड ही डिड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवरीवन। दोज आर from our community, LGBTQI community, because he did really good for us. Especially he runs Kesav Suri Foundation and particular through foundation उन्होंने बहुत लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लोगों को हर चीज़ों से बाहर निकाला है। जैसे केसव सूरी फाउंडेशन वर्क्स फॉर
acid victims. In fact, to us also, जिन लोग trans women हैं, जिन लोग privileged नहीं हैं, even they really do work for them. मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू फॉर कि मैं ऐसे ही बोलूँ, आप लोग भी इसी फील्ड में हो और कहीं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो प्रिविलेज हैं, प्लीज़ अकेला कितना देश शामिल करें, जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आप भी शामिल हो जाओ और बनाओ अपना भी वजूद। और मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक्स टू केसरसुरी फाउंडेशन एंड ललित हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू अगेन एंटायर टीम। आपने कैसे मेरे अंदर क्या देख लिया इस टकली को, बट थैंक यू। So बस आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूंगी। सर आपका क्या कहना है हैशटैग मंडी के बारे में, कि व्यूअर्स कैसे इसको देख के रिएक्ट करेंगे, उनका like they will accept it in a good way or a bad way, या कैसे क्या होने वाला है? First of all, good evening, all of you. Actually, as a channel, we always go for new concepts, new talents, new genres. Those who have downloaded our app must have gone through all the series and they come to know that we are into a new talent as a search of knowledge, new talents. The same thing goes over here also. This is a subject. I think none of the OTT platforms in India at least have chosen this kind of subject on their platforms. So it's a new thing for us. At the same time, it is not about only boldness of the series. We have, I think, we have exposed a little bit from our point of view. The other part of the transgender discuss, what humility or what say in a better way, how they suffer in society in a normal way. So we try our level best to expose those things. And before that, as a talent head, as a channel head, we think about the new things will definitely come for us and will generate more money as that is the other things. But besides the joking, I think we have successfully given we have given whatever series we have put in. We have definitely promoted a lot of new talents as such, and will continue to do so in future also. Thank you so much, sir, and I thank all the team. I hope ये है हैशटैग मंडी, बहुत ही लोगों को मोटिवेट करें, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करें। और कुछ और मैं नाम थैंक्स करना चाहूँगी, जो कि थैंक्स से पहले थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मिला था हमें। सुनीता जी, गरिमा, संदीप, अमित, कमल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। कमल जी, अभय पीछे से हमेशा एक्शन कट बोल रहा है क्या डायरेक्टर? कम प्लीज क्लैप फॉर। इन लोग सब इतने शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ हमें सपोर्ट करने आए हैं, नथिंग एल्स। गरिमा has played a very important role in the series, which is a surprise. उसके लिए सबको देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। And cake please for Ivanka. Sir, Ivanka का 2 दिन पहले बर्थडे था, तो एक केक कटिंग हो जाए। देवा सर, केक। Okay. And next. हाइड मत कर देना। यहाँ सामने देखिए। चलिए। थैंक यू। अब कुछ पर्दे के पीछे के लोग हैं सर, उनको बुलाना चाहूंगी मैं। डॉक्टर नाजिर मोहम्मद, पेट्रिको, मधुर जी, अभय जी, मनोज जी एंड पीके सर, प्लीज कम ऑन स्टेज वंस, प्लीज। सिर्फ हमें सपोर्ट। Petro, I know you don't understand much, but this show will rock. Say all the best. Say all the best. Say best. Bit loudly. Huh? All the best. Please, Abhay ji. ठीक है सर। मैं क्लोज आइएगा, क्लोज आइएगा, सबको आगे लेके जाना। म्यूजियम से बच्चे हैं, एक आदमी को बुलाना। क्या लोग, सेंटर लोग, एक्सक्यूज मी। चलिए। लगवा दो। नाजिर सर, टाइम 6 को विश तो कीजिए।
I would like to congratulate Creatives Great. Thank you so much for inviting us here. चलिए भैया काट लो। ओके एक्शन कर लो अबे रीटेक नहीं लेंगे। Lucky, just like we like pan and we are talking while when they will start. अभी हो लंबा ले लो, I'll cut it. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ट्रेलर और जो प्रोमो हमने देखा बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। कहीं मुझे एज अ जर्नलिस्ट फेस 3 की याद दिलाता है, चांदनी बार की याद दिलाता है कि उसके पीछे क्या दर्द छुपा हुआ वो दिखता है। हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट हैपेंड, किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे सीरीज का जन्म है, आपसे जानना चाहिए। इस सीरीज का जन्म तो आशु जी ने दिया है। आशु जी ने जब ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आए तो मैं पहले कंफ्यूज था करके आशु जी अच्छा लगेगा, तो आशु जी ने बताया करके सर मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक होने के बाद मुझे बता देना कैसा लग रहा है आपको। लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आशु जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर रिएक्शन जिस वक्त आपको बोला गया कि दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द, यू नो, यू विल बी लीडिंग द सीरीज, आई वुड से, इंस्टेड ऑफ। पहले तो मैं ये बात सुन के मुझे हैरान हो गई थी, ठीक है चला, I'll do this part. So when it comes about of all these scenes, AG scenes and all, so I was like, oh my god, because in personal life must be I look very modern, very bold or something like that. I'm not the person actually from inside who will be very comfortable on those with those scenes actually. To feel later on, I realized कि नहीं, चलो it's okay. Being an actress, you're supposed to be there, and कहीं ना कहीं you have to be. So she was the only one. मुझे अभी भी याद है वो सीन पर्टिकुलर करने के लिए I took 2 hours. नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं होने वाला, मैं 2 घंटे ऐसे I was like stubborn, no I can't do it, like सब बंद करो, बंद pack up, 2 घंटा she was the only one counseling me, baby you have to do it, and she was start giving me all those reference जिन्होंने legendly जिन लोग perform करते हैं उन लोग yes done, okay चलो why not? So now I'm very comfortable seeing me myself whatever I did as an actor. सर आपसे जानना चाहूँगा, एक अलग तरह की शुरुआत मुझे लग रहा है कि इस तरह का कंटेंट मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट आया नहीं है, एक अलग कोशिश करी जा रही है, और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जिस तरह से एक्सप्लोर हुआ है उसके अंदर एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं आप। क्या उम्मीदें हैं आपको ऑडियंस, यू नो, अदरवाइज लुक वेरी इम्प्रेसिव, यू गेट गूज़बम्स जब आप देखते हैं, आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट इंटीमेट सीन, इट्स मोर अबाउट द ह्यूमन रिलेशन, इट्स मोर अबाउट द इमोशन। मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो थोड़ा बहुत बोल्डनेस, जो उसका जो पीछे का जो उनका जो सफरिंग्स है वो भी हम लोग चाहते हैं कि आगे लेके आए। तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैरेक्टर की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस होगा, जो बहुत ज़रूरी है। बस तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस। सर टॉकिंग अबाउट प्राइम फ्लिक्स, क्या मतलब कैसे डिफरेंट है अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा ऐप? अभी गॉन थ्रू ऑल माय सीरीज, अभी गॉन थ्रू ऑल माय सीरीज? नो नॉट येट। देखो फिर डिफरेंट ही है वो। अरे सही बात है, जॉनर जो है उसका सब्जेक्ट से ऑल डिफरेंट है, राइट, और अभी भी नहीं, अक्टूबर तक ऐसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको अलग सब्जेक्ट, राइट। तो गो थ्रू ऐप डाउनलोड करा दो, पहला सीरीज देखो हमारी। Also, what is the USP of Prime Flix? If you can brief about that. In the beginning itself I told, हम लोग ने कहा था कि bold and beautiful, वो अभी भी वही है, तो मतलब not vulgar, nothing like that, खूबसूरत भी दिखे और सब्जेक्ट वाइज बोल्ड हो, राइट। जैसा यह है बोल्ड सब्जेक्ट।
ऑल्सो आप जो है सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस करें हमने देखा तो सर कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हमें मैम इफ यू कैन टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस टाइम शी कम आउट विद डिफरेंट सब्जेक्ट। सो बेसिकली हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है, मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर, उतना फेथ दिखाते हैं मुझ में। हम लोग यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है, क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो, ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो प्राइम फ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे। दूसरा बात यह है, एज ए चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज़ आए तो रैदर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं, थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो प्राइम फ्लिक्स का यही मोटिव है टू इट्स व्यूअर्स। आई विल ऐड ओवर जो जनरेशन अभी है चल रहा है हम लोग का, समझो वेरी डिफिकल्ट टू चेंज जस्ट, बट एटलीस्ट हम लोग जो बोली कि वी आर टारगेटिंग द टीनेजर्स, कि वही फ्यूचर है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है, उनका माइंड अगर सेट पूरा चेंज होता है, डेफिनेटली वी विल हैव अ better in fact someone should be there who can break this. Why we always wanted to see the way we really wanted to. जब when we picturize बड़े पर्दे में, तब तो हम कर लेते हैं, क्यों छोटे पर्दे में हम घर घर तक नहीं पहुंच सकते, which is true. But ma'am, big players in the market, Netflix is there, Amazon is there, Hotstar is there. They have a decent budget for the production kind of thing. So how will you try to make a difference through your platform? हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुँचे। तो वी आर वेरी कंटेंट ओरिएंटेड चैनल, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे। हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा, एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना। तो टचवुड 1 महीने मतलब 2 महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था, तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, बट द थिंग इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस, बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में बात हो रही थी, और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड राइट नाउ. I look bold, sexy, very dominant woman, where the personal life I'm very subtle, very social. But the thing is, when it comes about of the when you going to lead something, lead somewhere else, मैं बहुत ही ज़्यादा वो dominant woman हो जाती हूँ, which is I am there, I'm here. So for me, I really don't want to take any reference from others where I really wanted to pretend myself. So this is my answer, which is I am. तो ये बहुत ही पता नहीं coincidence came to me character तू है, तो मतलब ठीक है, ये तो मैं ही हूँ, इतना फर्क है, एजी में नहीं हूँ, एजी में नहीं हूँ, या बट हाँ वो सीन के बारे में होता तो मैं हाइट ओके, बिकॉज जनरली आई एम नॉट इनटू लाइक दैट ऑफ थिंग्स, बस लाइक दैट व्हेन इट कम्स अबाउट बॉसी थिंग आई एम देयर, ओके कर ले काम, सो आई एम देयर. ओके, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. हाँ जी, ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने? शाहरुख, इट रिमाइंड मी ऑफ द वे शाहरुख इंटरेक्ट विद मीडिया, कुछ पूछने से पहले जवाब रेडी है, और वो भी हर फन मोहल्ला है. अब देखिए, अब कलाकार हमने अपने आप को साबित तो कर दी है, तो अगर एक्टिंग खाली स्क्रीन में करूं तो फ़ायदा क्या? हाँ, और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है, जब मौका मिल गया इतने सारे मर्दों को नीचे करना, सो ऑफ कोर्स आई एम देयर, आई एम देयर, दैट्स माय कैरेक्टर. मैम एक सवाल, यहाँ पे पोस्टर देखा मैं, पोस्टर बहुत ही कैप्टिवेटिंग लग रहा है. हाँ, जो आइडिया था बिहाइंड द पोस्टर, आई वांट टू नो अबाउट दैट. किसका आइडिया था, कैसा था? इट लुक्स वेरी कैप्टिवेटिंग. ओके, सो द थिंग इज अगेन इत्तेफाक से तो मैम को मैं पूछती ही रहती थी जब मुझे कास्ट किया गया है, तो अभी मेरा फिर और 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सब जहाँ से मुझे ना खाली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलते हैं, एंड आई एम सेइंग मुझे भी थोड़ा बच्चा वाला रोल दे दो, तो इन्होंने बोले तभी बाल उगा ले. सो आई सेड ओके, उगा लूँगी, मगर वो तो वीक भी चलेगा. तो उन्होंने बोला एक्चुअली द वे यू जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, क्लोथ्स है, तो कैसे कलर्स है, तो मैंने बोले रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है.
वाइट है। बोले मैं तो कहाँ से सोशल लगेगी, ऑल अ स्ट्रॉन्ग, तो बोले येस मस्ट बी बिकॉज आई लाइक पर्सनली दोज कलर्स। तो उन्होंने बोला था मुझे पर्टिकुलर तुझे वही गाउन चाहिए जो मतलब आई रियली वांटेड टू सी, तो उन्होंने पहन ले और खड़े हो जा, एंड आई गिव ओके, मैं तो बॉस लगी रही हूँ, सो लेट मी गिव द एक्सप्रेशन, सो इट्स केम एंड थैंक्स टू व्हाट इज नेम द फोटोग्राफर Rajat, he really nailed it. Rajat nailed it completely. Thank you Rajat, you made it. एंड पोस्टर जी, आपने जो प्रश्न पूछा मैंने इसलिए श्री को लुक भी दिया, हमने कुछ 20-25 पोस्टर बनाए होंगे, तो ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, फिर लास्ट में ये निकल के आया कि यस इसमें लग रहा है कि कुछ, ये तो मैं भी नहीं लग रही उसमें जो हूँ मैं। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। जैसे हमने इन लोगों से पूछा था, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए और कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली आप लोगों से ये जानना चाहूँगा क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और कुछ बोल्ड सीन्स भी है, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था ये? मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। चैलेंजिंग तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वेब का, मतलब मैं एक्सपीरियंस हुई हूँ गंदी बात से, तो ये अच्छी बात थी। मतलब नहीं वो भी बहुत अच्छी बात थी, मतलब नेम रिलेटेड मैं ये मजाक कर रही हूँ। सो द थिंग इज़ दैट प्यार, ये जो प्यार है ज़रूरी नहीं है एक लड़के और एक लड़की में ही हो। सो इट कैन बी अ गर्ल टू अ गर्ल, इट कैन बी अ हस्बैंड टू अ वाइफ टू अ वाइफ, और अ फीमेल टू अ फीमेल, एनीथिंग। सो द थिंग इज़ दैट आवर सोसाइटी नीड्स टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक ये मना है, मतलब देयर इज़ नो, मतलब नथिंग कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो द थिंग इज़ दैट मेरा जैसे ये किरदार है कि मतलब बहुत से सिंपल सी लड़कियाँ ये उठ के आती हैं एंड चारों तरफ ये सब देख के शी गॉट सरप्राइज्ड एंड वो मतलब एक अलग ही जोन में चली जाती है। बट यही मतलब हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते सबके सामने। अगर मैं खुद एक लड़की से प्यार भी करती हूँ तो मैं दुनिया के सामने आके नहीं बोल सकती, आप भी अगर करते हो तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है। मतलब द कैरेक्टर प्लेड बाय इवांका, इट्स वेरी चैलेंजिंग, मतलब आई वुड लव टू प्ले दैट रोल यार, बट शी वाज अमेजिंग देयर, एंड वही हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। So how was your experience working? माई तो इस मतलब मैं ही प्ले किया, मतलब इट वॉज ओनली मी, नहीं मतलब मैंने ही प्ले किया। इट वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है ज़िंदगी में, मतलब मेरी सीमा की, जो कि लड़की को भी लाइक करती है, समटाइम्स लड़के को भी लाइक करती है। सो इट वॉज, मैं अगर पूरा बोलने जाऊँगी तो मैं बता दूँगी, इसीलिए मैं ना रुक के बोल रही हूँ कि कहीं मैं बोल ना दूँ स्टोरी। हाँ सीरियसली, तो मैं पॉज लेके बोल रही हूँ कि मैं पूरा ना बोल दूँ। सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड इट्स ग्रेट। What about you? How was your experience working with? I mean, as she mentioned that there are a lot of twist and a lot of triangle. She's loving someone else, she's falling with someone else. Or as far as my experience concerned, I have done a few web series before. Or as far as my role in this series, it's quite similar, which I have played in the past. And as I've mentioned earlier, so with me, my connection with director is very important. So and the way we both connected, and Pallavi, she's my love. She's Seriously? Yeah. Okay. You don't know? No, Pallavi don't know. Seema knows, I guess. Seema, I guess, yeah. So yeah, it was a very good experience, me being a part of that series. Yeah. Thank you so much. Thank you. Sir, what would you say about this Prime Fix? And good to see you, Sandeep. You hardly come to any event. How come you're here? Simply because of Ashpreet Dhaliwal ji, Ashu Dhaliwal ji. Because I've started with her when in 2006 when I came to Mumbai. I did my first show for UTV Bindas. It was called Sunyar Chilmar. I did Piddi's character and she was the associate producer in that. So this is how the journey started, and we both are Punjabi, so we got gel well on the set. And उनके बारे में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो डिसीजन मेकर है, वो बोल देती हैं कि ये सही है, एक बार में कंफ्यूज नहीं है लाइफ में. So that's what I like about her, and that is why I'm here. And then I saw her work, which I knew
will gonna be good and great and different from other what people are doing, and which it is, which we all have seen now, कि इस तरह के different subjects पे काम, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इतने OTT platforms है और इतना content बन रहा है, ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि क्या देखे क्या नहीं देखे। तो उस सब के बीच में अगर कोई एक अलग सी बात कहता है तो एक आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो मुझे लगता है कि ये फिल्म का पोस्टर ही, सीरीज़ का पोस्टर ही कर रहा है अपने आप में। ऑल्सो हमने देखा आपने टेलीविजन में किया, लेकिन क्या हम आपको कभी वेब सीरीज में या फिर प्राइम फ्लिक्स के साथ कोई कोलैबोरेशन में देख सकते हैं, ऐसा कोई प्लान अगर आप? देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं 7 साल का था तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी थिएटर से, फिर मैंने 13 साल थिएटर ही किया, फिर मैं बॉम्बे आया। तो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे OTT हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं उस तरफ आकर ऑडियंस के नज़रिए से देखूँगा तो ये सवाल वाजिब है आपका जो आपने मुझसे किया, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के जहन में रहे। और बाय द गॉड ग्रेस और लोगों के प्यार की वजह से मैंने 12 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, सिर्फ 4 शो करे हैं। बहुत लोग मुझे उसके लिए शायद बुरा भी बोलते होंगे क्योंकि मैं मना कर देता हूँ, तो समझते होंगे कि इसको ज़्यादा ही समझदारी है, पर मेरे को जितनी भी समझ आती है वो ऑडियंस ने उसका जवाब दिया है कि मेरा कोई भी शो 2 महीने में बंद नहीं हुआ, मतलब कोई 5 साल, कोई 3 साल ऐसे चले हैं और मैंने गिनती के शोज़ करे। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या देना है, क्या चाहती है, और मैं लकी हूँ कि ऑडियंस मेरा काम पसंद करती है। आपने टीजर प्रोमो देखा, ये हैशटैग मंडी का क्या कहना चाहेंगे, क्या खास लगा आपको? बहुत बॉल्डनेस भी थी। करेक्ट, खास सबसे ज़्यादा किरदार, सब्जेक्ट, जो कि अपने आप में उसका जो नाम है हैशटैग मंडी, ये है मंडी। तो बेसिकली एक इन्होंने इमोशंस की मंडी, जैसा कि आशु जी ने भी कहा कि ये एक इमोशन की मंडी इन लोगों ने सेट की है, जो कि दुनिया में है ही। हम हर इंसान के जीवन में कई तरह के इमोशंस हैं। अब बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं आज के इस टाइम में जब हम हैं, तो वो इमोशंस को लेकर के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे हैं। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि वो इमोशंस आप जो हो वो खुल के सामने आ जाओ, और उन्होंने कितनी सुंदरता से कही है ये तो हमको सीरीज़ देख के पता चलेगा, तो इसके लिए देखना चाहिए सबको। एक अलग वक्त आ गया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सीक्रेट गेम से लेकर अब तक एक नई क्रांति है और काम भी बढ़ा है। कोई नई क्रांति नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे जब DD1 था तो मैं इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली, जो मुझे समझ में आता है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर 12 ईयर्स। जब एक चैनल था DD1, लेकिन लोग तो बहुत सारे रखते हैं इच्छा काम करने की फील्ड में, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे ही उस टाइम पे जी सोनी आए थे तो फिर उन लोगों को भी काम मिल गया था, फिर सब करने लगे थे, फिर बहुत सारे, फिर वही कि डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। तो ये सर्कल है और जो ये चलता रहेगा। अभी की टाइम में हम जो देख रहे हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और चाहिए सबको कंटेंट, क्योंकि ऑडियंस तो वही देखेगी ना। तो अब वॉर है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। तो अगर पिछले 2 साल में मैं ऑब्जर्व करूं तो तकरीबन कई 100 वेब सीरीज़ या फिर वेब पोर्टल्स पे या फिल्में और चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या ऑडियंस से पूछूं तो वो 4 या 5 नाम मुझे गिना पाएंगे। तो मैं उन 4-5 नामों में शामिल होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा सा पर्सनल प्रमोशन करते हैं। हाँ बोलना है, लाइट देखिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। जैसा राकेश जी ने भी अपने वक्तव्य में अपनी बात में कहा कि उन्होंने नया देखा इसलिए उन्होंने आशु जी को मौका दिया। तो ऐसे लोग मैं चाहता हूँ और आए जो नया देखे और मौका दें। इसी बीच में मैंने भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म अपनी ऑडियंस के लिए एज अ गिफ्ट और एज अ गिफ्ट टू माई व्यूअर्स हु हैव लव्ड माई वर्क फॉर 12 ईयर्स, आई जस्ट ट्राइड टू डू समथिंग विच हैव नॉट हैपेंड अर्लियर इन द होल कंट्री और इन द होल वर्ल्ड। तो ऐसा हमने कुछ कोशिश की है। एक फिल्म है मेथड एक्टिंग का भूत, यूट्यूब पर है, आप देखिए और लिखिए उसके बारे में आपको जैसा लगता है। हमने बस आपको एंटरटेन करने के लिए बनाया। थैंक यू सो मच।